morning. I hope you guys are doing well. I don't know if you can notice, but I am instantly extremely happy. When you're genuinely happy and you're not hurting and you're mentally free, I think it really shows on your face, as you can tell. I think मैंने पहली बारी अपने आप को notice किया है that I significantly look better because of the fact that I feel so much better than before. I'm not stressed. I'm not worrying about work. I edited my vlog last night without any pressure. I'm thinking of what content to take. I'm excited. I'm happy. I'm in a place where I call home. I finally feel at home. For me, I think being in the mountains is being at home, and no matter where I am, especially if I have a connection with that particular place, I instantly feel at home. I don't want to be anywhere else, and yeah, this is so nice. At the time say when you're living in a place, it kind of resonates onto you. Dubai is very artificial, all about spending money, and when you stay there, you kind of start resonating with how that city works, right? यहाँ पे आने से पहले जो अन्य ने अचानक से जो flight book कर दी थी, I needed time to prepare myself. But now that I'm here, I was just wondering yesterday in the car, I'm like, why? Like I remember when I was already living in India, I never used to even think twice before coming to the mountains. But since हम इतने time से दुबई में रह रहे हैं, that place has kind of grown on to me. But I'm glad I'm out of Dubai, because as soon as I leave Dubai and I'm like, oh, I remember myself. And last night on the way, and मेरे को वही वो बातें याद आ रही थी, मेरे को चीज़ें याद आ रही थी from my past when when I used to take like buses and arrive to the mountains for a trek, or all these stories were coming back to me, and I was remembering who I am really, that I had forgotten in the last 3 years. And I'm excited to find myself again, excited to meet myself again. Let me quickly tell you where we're staying. We are staying at this hotel called the Himalayan. This is our cottage. It has 2 rooms. You enter directly into the staircase and in the living room. That's Bablu stealing my chai, of course. This is the living room, the dining room and the kitchen. यहाँ पे इन्होंने हमें बढ़िया kettle and utensils भी दिए थे, जिससे हमने रात को मैगी बनाई थी. That's the first room. A little outdoor area. This is the second bedroom with a freaking bathtub, man, and also a little balcony. This cottage ka actual price is 28,000 rupees for one night. हमें discount मिला है, and also अभी season time है, so rates will be a little higher. अरे वाह यार, क्या ब्रिज बना दिया, अमेजिंग, गुड जॉब बना ली यार। यहाँ पे मैं तो 4-5 साल के बाद आ रहा हूँ। इसमें पता है, ये ब्रिज अगर आप क्रॉस करो, हाँ, तो आपकी गाड़ी में 5 लीटर फ्यूल पड़ जाता है। अबे सही। We have crossed the Atal tunnel and we have arrived in Lahore, and it looks so beautiful. And also it was great to see so much security, a lot of checking, and everyone was following the speed limit inside the tunnel, which was I was very proud of that. One thing I will like to say though, while there were people who were following the rules and who were following the speed limit and everything, not making a noise, quietly, आराम से driving, respecting the place, there were a lot of people who were not. Just for an example, अगर तुम highway पे हो, तुम गाड़ी चला रहे हो, if you want to take a picture, just find a place where you can park the car, give your indicators and stop. There's nothing wrong in that. But if you slow down in the middle of the highway where there are cars already driving, just for a freaking photo and taking your head out of the shisha, it's not okay, and it'll never be appreciated. Manali एक बहुत popular जगह है, and I understand why, because firstly it's very very beautiful, secondly it's very well established, there are a lot of hotels, a lot of restaurants, third there are so many activities here to do, fourth it is also a stopover if you are going to Ladakh or if you're going to Spiti. So I understand there will be a lot of tourists coming, there will be a lot of people here, which is absolutely okay. We can't exactly tell people to stop coming because that's not the solution. The solution is responsible tourism. और इसका एक बहुत अच्छा and बहुत easy example is not littering. If you are coming, अपनी पानी की bottle लाओ, उसको refill कराओ,
don't use plastic bottles, because obviously then where else will you trash it, right? Outside. And even if you are bringing plastic, please bring packets of that you can use as dustbins inside your car and just collect your trash. Just like you wouldn't litter in your home, consider the mountains are your home, because they are for a lot of people. A lot of the locals here depend on tourism, and of course they need tourists to come here, but we just need to be a little mindful of the environment and how we're traveling, where we're going. मेरे को हमेशा यही लगता है कि अगर हम अभी इन जगहों को preserve नहीं करेंगे, going forward these places will not be this beautiful and that will be so sad. चलो भाषण हो गया, अब चलते हैं. One more tip that I just remembered: when you're driving, अपनी लेन में चलाओ, इंडिकेटर प्लीज मत देना भूलो, टर्न्स पे हॉर्न मारो, और अगर कोई ओवरटेक कर रहा है उसको प्यार से करने दो. ब्यूटीफुल. छोटे मुझे दे दे यार. नो 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 नो. बाइट तो ट्राई कर. बाइट तो ट्राई कर. I don't share food. Shut up. बढ़िया, अभी हम लंच करने रुके हैं. I'm having राजमा चावल and being healthy. Pablo, give it back. यार ये पता है, ये छोटे छोटे ढाबों के ना मेरे को राजमा चावल खाने में बहुत मजा आता है. When I was a child, wherever and whenever I used to go out with my parents, जब भी हम जा रहे होते थे, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, whenever, I always ordered राजमा चावल. देखो गाइस, जब ऑक्सीजन कम होने लग जाती है तब लिप्स पर्पल होने लग जाते हैं. क्या हो गया? यही होता है. लिप्स पर्पल हो गए. टी-शर्ट से मैच कर रहे हैं. मेरे लाल जूसी लिप्स पर्पल जामुन बन गए. Guys, also when you are in high altitude or going towards high altitude, तो जो अपने शीशे होते हैं, no matter how cold it is, just keep them a little low so that बाहर की हवा अंदर आते रहे. Otherwise, when you get out of the car, you just experience अचानक सा, you know, low oxygen because you don't experience that inside your car. भाई अभी मस्त एक बंदा आया, साइड में रुका, बोलता अभी आगे जाके बस तेज तेज निकालना, और हमने बोला ऐसा हो क्या रहा है, ही पता चल जाएगा. 1 किलोमीटर आगे जाम लगा हुआ है. फिश मुझे करने दो. मैं निकालूंगा. अबे पागल है क्या? अभी राइडर ने भी डटा किया था, डाल दी थी. चल राइडर है किसी की. अबे बबलू, मैं अगली बार नहीं, मैं अगली वाली गाड़ी देख के मैं नहीं करूँ. पागल है. A few minutes later. चलो. इंसिडेंट ऐसा हुआ, मेरी बाइक तो निकलने के निकल गई, लेकिन मेरे दोस्त की एक बाइक फोर्स की वजह से नीचे नाले में फंस गई. तो बाइक निकालते बाइक की पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई. साइड को रखना. बेटा मांगा था ना, कोई खतरनाक सी गोली आ रही. केयरफुल व्हाट यू विश फॉर. भाई that was way too adventurous. अभी थोड़ी देर पहले करण बोल ही रहा था कि यार ये मस्त रिवर क्रॉसिंग आ चुका है. सुबह से बोल रहा है एडवेंचर. हाँ, मतलब करण सुबह से बोल रहा है कि भाई एडवेंचर होना चाहिए, लाइक रिवर क्रॉसिंग आनी चाहिए, मस्त. बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर. अभी हम सचू पहुंच चुके हैं. वी आर स्टेइंग इन लाइक दीस कैंप्स व्हिच आर वेरी कंफर्टेबल. हम खाना खा रहे हैं. प्राइस बता दे भाई, प्राइस बता दे. प्राइस वाज 3200 व्हिच इज इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट. तो 1000 पर पर्सन सही है भाई. 1000 पर पर्सन काफ़ी सही है. इस बार इतनी ठंड नहीं है, बट वी आर हैविंग सूप एंड मतलब अंदर जाके एकदम ऐसा गरम मस्त मज़ा आ गया. एंड द फूड इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. ये देखो, ये है हमारा अकोमोडेशन, एंड द बेस्ट पार्ट इज देयर इज़ अ प्राइवेट बाथरूम इन साइड. ये देखो, बढ़िया एकदम. Good morning, beautiful people. Another day has started
एंड रात की गॉसिप एंड कल की गॉसिप मैं थोड़ी देर में देती हूँ, बट अभी वी हैव जस्ट क्रॉस्ड सरचू एंड जो यहाँ पे सरचू का ब्रिज है, यहाँ पे एक चेक पोस्ट है where they are asking for कोविड रिपोर्ट्स। तो कल रात को क्या होता मतलब पूरे ऑन थ्रू आउट दिस वे वी वर टेलिंग करण की, क्योंकि इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे आया नहीं हुआ वो, वी वर टेलिंग हिम कि नहीं सर दर्द होगा, ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। सो ही काइंड ऑफ गॉट अ लिटिल स्कैर्ड। हम वी वर कॉन्फिडेंट इन आवरसेल्व्स राइट। तो हम कल जब हम पहुंचे अपने कैंप्स, हम रात को पहुंचे थे बिकॉज ऑफ दैट रिवर क्रॉसिंग एंड ओ बाय द वे पीपल आर स्टिल स्टक देयर, सो थैंकफुली वी केम आउट एट द राइट टाइम, अदरवाइज हम पता नहीं क्या होता हमारा। हम जब रात को पहुंचे हमने डिनर किया मस्त, मैंने एक रोटी खाई, मस्त चावल खाए और टोमेटो सूप पिया। तो आई वॉज होपिंग कि ठीक होगा। एंड सरचू इज एट, जहाँ हम रुके हुए थे दैट वाज एट 4400 meters which is quite high already एंड हम सीधा आए थे मनाली से, सो दैट्स लाइक अ वेरी बिग एलिवेशन। तो जब हम सोने लगे, एक तो मेरा और अनन्या को इतना सरदर्द हुआ, इतना ज्यादा सरदर्द हुआ, हमने पिल्स पॉप की। इन द मॉर्निंग आई वॉमिटेड, अनन्या वॉमिटेड एट नाइट एंड हे भगवान हमारी इतनी हालत खराब हुई थी, बट लकीली नाउ वी आर ओके। तेरे को ऐसा लग रहा है? तेरे को रात को क्या हो रहा था? सरदर्द? मुझे हाँ यही चिल्ला रहा था। अरे एक्चुअली क्या हुआ, पहले तो ये हुआ कि मुझे ना खाना तुम लोगों ने माइंड में डाल दिया कि खाना ज्यादा मत खाना। फिर जैसे ही मैं रूम में घुसा ना, मैं खाना ज्यादा खा लिया। ओह शिट। तो उसके बाद फिर ये कहता मैं उल्टी करने जा रहा हूँ, फिर मैं कहा इसको उल्टी आ रही है, मैं भी देखता हूँ। फिर मैंने सोचा मैं उल्टी करता हूँ, फिर मैंने कहा चलो आधे घंटे बाद करता हूँ। फिर आधे घंटे में नींद लग गई, फिर उसके बाद मैं आधे घंटे बाद उठा, फिर गैस से ना सर फटने लग गया मेरा गंदा। फिश। एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सबकी हालत खराब हुई थी एंड वी कुडंट स्लीप दैट वेल लास्ट नाइट। और गंदा है। आपको तो मजा आता सर रिवर क्रॉसिंग? क्रॉसिंग करो जरूर करो। पूरी मोड़ लेना, टक टक चल मुर्गी। हाँ बे, पता है मुझे अपनी शांति से ज्यादा I am having my own fun. Why can't boys have all the fun? मेरे को आने को दोनों को करण के साथ बैठे तो ना थोड़ा कॉन्फिडेंस मतलब -20 में जा रहा है सालो। एनीवे अबे यार तुम ऐसे अंडरएस्टिमेट कर लो यार, मुझे बुरा लग रहा है। वो रहा रास्ता और ये भाई साहब पता नहीं कहाँ ले आए। मैं नहीं लेके आई, कर रहा है मुझे लेफ्ट राइट। और पीछे बाइक वाले हमारा पीछे करते ओह गॉड। चल चल वहां जाके मिल रहा है रास्ता, चल 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 वो देख। वाओ, ये लोग को ये ब्लॉग देखते देखते ना चक्कर आ जाएंगे। अबे यार इसके चक्कर में वो हो गया हमारा। गुड जॉब बाबलू। स्टोरी टाइम। तो अभी हम 22 मोड़ एक जगह आती है लेह और मनाली के बीच में, उसको अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। देयर आर 22 टर्न्स हियर और मतलब काफी सुंदर जगह है। घाटा लूप्स। तो यहाँ पे जब अन्य के साथ में पहली बार आई थी, दिस वाज 4 years नहीं 2018 में। मेरे को ये स्टोरी स्पीति में बताई थी एक ड्राइवर ने। On one of the loops you find like a ढेर of plastic bottles which are empty. Legend has it that यहाँ पे क्या होता है, एक बारी विंटर टाइम था, there were these 2 truck drivers that were crossing this place and I think उनकी गाड़ी कुछ खराब हो गई थी। So जो ड्राइवर था he told the passenger कि अच्छा ठीक है यहाँ पे आसपास गांव है तो मैं वहाँ से मदद मांग के आता। तो वो मदद मांगने गया पर वो बेचारा वापस नहीं आ पाया एंड जो बंदा जो ट्रक में वेट कर रहा था while he was inside बर्फ पड़ गई एंड मतलब 3-4 फुट की बर्फ पड़ गई एंड he couldn't really get out, so he died of thirst. So now just to pay respect to his soul, people drop off like a full bottle of water here. वापस आते सारी बॉटल्स खाली होती हैं एंड इफ यू डोंट डू दैट आइडली ऑब्वियसली ये बोलते हैं कि इस रास्ते को रात को नहीं क्रॉस करते एंड अगर इन केस करते हो एंड यू डोंट ड्रॉप ऑफ अ बॉटल, बंदा आपको रोकता है, पानी मांगता है एंड या दैट्स व्हाट द स्टोरी इज।